Hello, everyone. Thank you so much for tuning in and welcome to the third edition of our webinar series, Let's Talk. Let's Talk is an open webinar series where we regularly interact with experienced film professionals from various fields. Each session covers a different skill, giving practical techniques, helpful advice, insights, and tips to help improve your craft. This series is being organized by Filmboard Movies, which is a disruptive omni-channel B2B marketplace for any film production services ranging from talent and crew to film locations and services. So while we are waiting for everyone to join in, we'll give it a couple of more minutes, and then we can start. Great. So hello everyone. Thank you so much. Thank you so much for tuning in and welcome to the third edition of our webinar series, Let's Talk. Let's Talk is an open webinar series where we regularly interact with experienced film professionals from various fields. Each session covers a different skill, giving practical techniques, helpful advice, insights, and tips to help improve your craft. This series is being organized by Filmboard Movies, which is a disruptive omni-channel B2B marketplace for any film production services ranging from talent and crew to film locations and services. So while we are waiting for everyone to join in, let's watch a small video to give you all an overview of what is Filmboard. Awesome. So hope you guys got some overview of Filmboard Movies. And for more details, you can always log on to filmboardmovies.com.
So moving forward in today's webinar, we'll be joining acclaimed director Sandeep Verma in conversation with none other than Mr. Gajraj Rao as they discuss the craft of acting in detail. How to prepare for a role, giving auditions, working with directors, acting techniques, tips, and much more. So this webinar will be super useful for actors, aspiring actors, ADs, casting directors, directors, and anyone curious about the craft. So, let's move on. Let's move on in to welcome our guest for the evening, and we want to watch. We want to play a small video to introduce our guest for the evening. So I'll be playing a small video. Let's watch. Great. So hope you all like the video. So without further ado, I'm super excited to have Mr. Gajraj Rao as the panelist for our webinar today. He's known most for his award-winning performance in Badai Ho. He debuted in 1994 with a minor role in Shekhar Kapoor's Bandit Queen and has since worked in many films and web series. Mr. Rao is known for his supporting roles in movies like Talwar, Blackmail, and web series like TVF's Fathers and Tech Conversations with Dad, which we all love. And a very few people know that he has also directed a number of ad films with Coded Films. And our host for the evening, Mr. Sandeep Verma, filmmaker and founder of Filmboard Movies. Sandeep has directed and written several successful short films. His last work with Hamara movie, The Virgins, which garnered 20 million views, is one of the most watched short films in India. He has directed the feature film Manjunath with Viacom 18, and recently his short film The Disguise has earned a host of laurels in international film festivals. So I would now like to hand this over to start today's discussion. Over to you, Sandeep. Hi, everyone. Very happy to be talking to one of my most favorite actors. Hi, Gajraj. Hello, Sandeep. क्या हाल है? सब कुछ ठीक है लॉकडाउन में? All under control till now. आपके वहाँ पे कैसा हो रहा है? मुंबई में ही हैं? जी, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई का तो हाल पता ही सबको. We are just hoping for the best. Yes. मैं सबको बताना चाहूँगा कि गजराज से मेरी मुठभेड़ स्क्रीन पे बहुत बार हुई है. मैं हमेशा सोचता था कि ये कमाल का एक्टर मुझको कब मिलेगा, कब मुझे इससे बात करने का मौका मिलेगा. First time I met him was actually, I think a few months back when he had come for one of the screenings of my film Kahani Baz that time. And I mean, apart from the various performances of Gajraj, which I've liked, one particular shot of yours, Gajraj, which is quite amazing in Badai Ho, when you are there in the hospital with Ayushmann Khurrana, and Ayushmann is talking to the doctor, and एक शॉट है आपका पीछे से जो आप चल के जाते हैं आयुष्मान की तरफ, उसमें वो जैसे कि शॉट पीछे से है और आप पीछे से हमको दिख रहा है आपका कंसर्न क्या है, आपका एंजाइटी क्या है, आपका नर्वसनेस क्या है. वो दैट वाज द मार्क ऑफ अ ग्रेट एक्टर इन माय ओपिनियन. So congrats for that performance and congrats for so many wonderful performances which you have given us. I wanted to start from the top. Bandit Queen. हमारे ऑडियंस को बैंडिट क्वीन के बारे में शायद ना पता हो. I want to know आपको बैंडिट क्वीन कैसे मिली आपको? How did it happen? वो दिल्ली में उस जमाने में ज्यादा उस तरह से कास्टिंग और उसके लिए लोग होते नहीं थे. कास्टिंग डायरेक्टर नाम की चीज नहीं होती थी. तो
तो तिग्मांशु धूलिया वो उस फिल्म का हिस्सा थे, वो असिस्ट भी कर रहे थे और बैंडिट क्वीन की कास्टिंग भी कर रहे थे, और वो मुझसे सीनियर हैं, और उन्होंने वो हमारा एक ग्रुप था, एक्ट वन थिएटर ग्रुप, उसके बहुत सारे नाटक उन्होंने देखे थे, और मुझे एन के शर्मा, जी जी जी, तो मुझे लगता है कि वो एक वजह रही होगी कि उनको मेरा काम पसंद था। और एक आखिरी जो प्ले उस वक्त हुआ था वो था नेटुआ, जिसमें मनोज बाजपेयी जो थे वो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और ये बिहार के लौंडा नाच पे नाटक था और गांव की पृष्ठभूमि में था, तो शायद उनको लगा होगा कि यहाँ पे कहीं पे मैं फिट हो सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे मिलवाया और उस तरह से मुझे वो पार्ट मिला। पहले मुझे लगा था कि छोटा पार्ट है, इससे क्या होगा और क्या, लेकिन फिर जब वो शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद फिल्म आने के बाद जो उसका जो एक उसकी चर्चा हुई फिल्म की, और जिस तरह से फिल्म एक माइलस्टोन बनी, तो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपोजर मिला, बहुत तारीफें मिली, और अच्छा रहा, मतलब टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ मैं अपनी जिंदगी का। जी जी, बैंडिट क्वीन तो माइलस्टोन फिल्म है ही। उसके अलावा बैंडिट क्वीन ने हमको बहुत सारे ग्रेट एक्टर्स एंड टैलेंट दिया है। आई वर्क विद सीमा बिस्वास जी इन माय फिल्म मंजुनाथ। वहाँ हम बैंडिट क्वीन के बारे में बात करते थे। उसके अलावा आप, सौरभ शुक्ला, मनोज, सब के सब काफी धुरंधर एक्टर्स उस फिल्म ने हमको दिए हैं, हमारी इंडस्ट्री को। हाँ, मतलब अच्छा, ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स इस चीज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, एक एक्टर की लाइफ में या किसी भी टैलेंटेड पर्सन की लाइफ में रिजेक्शन बहुत होता है, और वो रिजेक्शन सालों साल होता है, ऑडिशन बाय ऑडिशन होता है, कई बार ऑडिशंस भी अलाउ नहीं किए जाते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से। तो चलिए, रिजेक्शन है, फेलियर्स है, लेकिन उसमें आदमी पॉजिटिव कैसे रहता है? हाउ हैव यू केप्ट योरसेल्फ पॉजिटिव ऑल दीज इयर्स? आई एम श्योर यू आल्सो मस्ट हैव गॉट रिजेक्शन मेनी टाइम्स। बहुत अच्छा सवाल है ये संदीप, और उसमें रिजेक्शन की एक खास वजह ये होती है, जो मुझे समझ में आया इतने सालों में, कि रोल कम होते हैं, पार्ट्स कम होते हैं, और उसके दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं। एक फिल्म में या एक शो में या एक नाटक में कितने पार्ट्स होंगे? इम्पोर्टेंट पार्ट 5, 10, 15 होंगे मैक्सिमम, और उसके लिए 100, 150, 200, 1000 लोग तक होते हैं। जैसे जब सुना था गांधी, जब दिल्ली में उसकी कास्टिंग हुई थी, तो मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग दिल्ली में, एनसीआर में, मुंबई से, उसके आसपास के इलाकों से उसमें फिल्म में काम करने की चाहत से उन्होंने ऑडिशन दिए थे। बड़े, अगर आप देखेंगे वो फिल्म, तो बड़े दिग्गज और नामचीन एक्टर्स जो बाद में बने, उन्होंने उसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स किए हुए हैं, एक एक सीन के, एक एक डायलॉग के, खाली एक एक्सप्रेशन के। तो एक खास वजह शायद ये होती है कि आप एक्टर्स ज्यादा हैं, परफॉर्मर्स ज्यादा हैं, और उस तरह से अच्छा काम नहीं होता है। तो मेरी जिंदगी में भी आया बहुत शुरुआत के दौर में कि एक प्रकाश झा साहब की एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए मैंने बड़े मन से ऑडिशन दिया, या चाणक्य सीरीज के लिए दिया था ऑडिशन, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की टीम को। तो दोनों भी नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छी बात रही कि उन लोगों ने चिट्ठियां लिखी, दोनों प्रोडक्शन हाउस से मुझे लेटर्स आए कि भाई आपने हमारे लिए ऑडिशन दिया, लेकिन हम माफी चाहते हैं, आपको इस प्रोजेक्ट में आपको काम नहीं मिला, आगे फिर कभी जरूरत हुई तो हम आपसे संपर्क करेंगे। तो वो भी एक अपने अपने मेरे लिए सर्टिफिकेट था। बड़े दिनों तक, महीनों तक वो चिट्ठी की भाई ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की चिट्ठी है, या प्रकाश झा का सिग्नेचर है उसके अंदर। वो एक पोस्ट कार्ड था, शायद पटना से आया था, प्रकाश झा प्रोडक्शन। तो मुझे लगता है कि एक्टर की जो जिंदगी होती है उस तरह से बड़ी एकाकी होती है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बहुत इस तरह की उसमें उसको जब टूटता है एक्टर या एक्ट्रेस, तो वो अपने आसपास के लोगों को बताना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, भाई मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये मुझे ये रोल क्यों नहीं, उसको एक एक इमेज भी रखनी होती है कि नहीं सब ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्टर्स जो हैं ज्यादातर वो उसी तरह से पेश आते हैं कि वो टूटते हैं, लेकिन फिर अपने आप को एक
खुद से मनोबल देते हैं अपने आप को और दिखाते हैं, जताते हैं, ज्यादातर ऐसे ही होता है और उसी में ही सीखता है आदमी कि क्या होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आप पढ़ते हैं, कई केसेस में होता है कि आपके पास अच्छे मिरर्स होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको रियलिटी बताते हैं। कई बार होता है कि आपको लगता है कि यार ये पार्ट मुझे मिलना चाहिए था, ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट बन गई, बिना ये रियलाइज किए कि शायद आप उस लायक नहीं है, आपका टैलेंट उस पार्ट के लिए नहीं है ठीक, तो आपके दोस्त आपको बताते हैं कि भाई ये तू गलत इस बारे में अफसोस कर रहा है, ये कुछ और मेहनत कर, कुछ और चीज आएगी। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का जिसने मुझे संभाल के रखा, दोस्त और जो एक्सपीरियंस जो थे वो अपने आप में बहुत बड़े टीचर थे। जी जी, ये जो चिट्ठी की आपने बात की, जो द्विवेदी साहब ने आपको लिखा था, वैसे मुझे याद है मैंने एक बार एक फिल्म लिखी थी और वो मैं चाहता था नसीर साहब उस फिल्म में एक्टिंग करें, तो उनको स्क्रिप्ट गई और मैं बिल्कुल नया नया आया था इंडस्ट्री में। तो नए, जब आप नए होते हैं तो एरोगेंट भी बहुत होते हैं, आपको लगता है क्या है यार, है ना, ऐसी भी क्या बात। नसीर साहब का एड्रेस खोज के मैंने हार्ड कॉपी स्क्रिप्ट भेज डाली उनको। एक महीने बाद वो स्क्रिप्ट आई मेरे पास और 2 पेज का हैंड रिटन लेटर आया नसीर साहब का, जिसमें उन्होंने पहले पेज की स्क्रिप्ट की तारीफ की और फिर कहा कि मैं वो क्यों नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन वो लेटर आज तक मेरे पास है, बिकॉज इट वाज व्हाइल सेइंग नो, इट वाज अ बिग एनकरेजमेंट फॉर मी। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो आई थिंक रिजेक्शन में भी एक अपने आप में एक होप हो सकती है अगर उसको जी। ये बताइए कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब पहले का दौर था, जब आप शायद इतने पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तब भी आप चूज करते थे उस समय कि जो आ गया मिल कर लिया, और अब जो चूज करते हैं उसमें क्या देखते हैं? ये दोनों सवाल पूछना चाह रहा था। तो शायद जो शुरुआती जो मेरा दौर रहा एक्टिंग का, थिएटर में कह लीजिए या दिल्ली में रहते हुए जो छुटपुट एपिसोडिक कुछ मैंने काम किए दूरदर्शन के, और तो उसने मुझे शायद ये लगा, ये समझ में आया होगा कि भाई कुछ भी काम कर लेने से जिंदगी नहीं चलती है। ये शायद कहीं समझ में आई। अब की जैसे बैंडिट क्वीन है, उसका एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसमें इतना छोटा पार्ट था लेकिन उसकी वजह से जो मुझे रिस्पेक्ट मिली, और मैं जब किसी प्रोजेक्ट में के लिए मिलता था और बताता था कि मैंने बैंडिट क्वीन में वो वाला पार्ट किया है, तो ओके, अच्छा अच्छा, राइट, सबने देखा हुआ था। तो वो एक चीज थी कि हर सब कुछ करना जरूरी नहीं है, संयम होना चाहिए। और आप संयम कैसे आता है कि आप अपने खर्चे कम करते हैं। जब आपके आप आप आपको धन की ज्यादा जरूरत होती है, रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होती है, तब आप कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन आप उस पर संयम कर लें कि नहीं, मैं अपने खर्चे कम कर लेता हूँ, मैं कहाँ पे खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या मेरी जिंदगी होगी, तो उसके हिसाब से फिर आप सोचते हैं कि हाँ इतना मुझे मिल जाएगा महीने में तो मेरे लिए ठीक रहेगा। तो शायद वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी जिंदगी में कि वो रियलाइजेशन शुरू में हो गया कि सब कुछ नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह से फिर मैंने जो एक ऐसा भी कॉम्प्लेक्स है कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि रोल कम थे और कंपटीशन बहुत ज्यादा था, और उसमें ज्यादातर जैसे अभी मतलब NSD के जो एक्टर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा स्पेस हो जाता था, और मेरा NSD से नहीं होना या किसी और इंस्टीट्यूट से नहीं होना, वो मुझे लगता था कि शायद मेरी एक कमी है, जिसकी वजह से मुझे मौके मुझसे मेरे हाथ से चले जाते। तो उस रियलाइजेशन में मैंने कुछ दिन सब कुछ छोड़ दिया एक्टिंग और कुछ और काम करने लगा, गारमेंट एक्सपोर्ट में चला गया और अखबारों में लिखने लगा। और फिर से जब आया तो फिर एक कहीं बैलेंस बना कि हाँ ये इसको शौकिया एक्टिंग नहीं बोलेंगे, चॉइस के साथ एक्टिंग। मुझे बेचारा एक्टर होना पसंद नहीं था जी। कि और जब आप बेचारे होते हैं तो आप सिर्फ आप बेचारे नहीं होते हैं, आपके दोस्त बेचारे बनते हैं, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली बेचारी बनती है। क्या बात है, सही बात। आप क्योंकि आपके जो दुख होते हैं जाने अनजाने में चाहे अनचाहे में उन तक पहुंच ही जाते हैं ना। तो वो उस वजह से फिर मैंने देखा कि हाँ आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूती होना चाहिए और उसके साथ साथ आप जो काम कर सकते हैं, तो मैंने प्रोडक्शन में किया और उसके बाद एडवर्टाइजिंग में जुड़ा। तो फिर वो पैरेलली ये दो चीजें मेरी जिंदगी में चली पिछले 20 साल में,
कि मैं एड फिल्म के साथ जुड़ा, एड फिल्म बनाता हूँ और उसके बीच में अच्छे पार्ट्स के लिए मैं लालायित रहता हूँ, लोगों से बोलता हूँ, मैसेज करता हूँ और जो काम आता है तो वो कर लेता हूँ मैं, ये कह सकते हैं। तो बढ़िया, ये मतलब बहुत सारे एक्टर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि अगर चॉइस रखनी है अपने पास तो और जरिए भी होने चाहिए जिंदगी चलाने के, और शायद चादर शायद थोड़ी कम फैलाएं तो बेहतर है, तो चॉइस रख और उसमें हाँ, क्योंकि संदीप उसमें ऐसा नहीं कि आप टैलेंटेड कम है, मुझे लगता है कि जो जो क्रिएटिव फील्ड में आता है सारे टैलेंटेड होते हैं, मतलब जो क्रिएटिव फील्ड में नहीं है वो भी टैलेंटेड होते हैं। कितने मैं डॉक्टर्स को जानता हूँ, अकाउंट्स में जानता हूँ, या एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं दिल्ली में, वो बहुत बेहतरीन उनके अंदर एक्टर छुपे हुए हैं। टिकटॉक ने साबित कर दिया है कि मतलब कहाँ कहाँ पे टैलेंट बिखरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं कभी वीडियो 3-4 वीडियोस देखे, कपल है कहीं किसी शहर में, ग्रामीण उसमें, और वो मतलब शायद खेतीहर मजदूर हैं या छोटे किसान हैं, पति पत्नी हैं शायद, और वो जो वीडियो मिथुन के और गोविंदा के गानों पे जो बनाते हैं, पहले मुझे लगा कि मैं मजाक में आ गया, अरे क्या ये बकवास है, लेकिन क्या शिद्दत है, उनके जो डांस स्टेप हैं, उनकी जो कोरियोग्राफी है, वो जो करते हैं, फॉलो करते हैं, और उसमें कट्स लगाने लगे हैं वो लोग आजकल। वो कट्स में होता है, एक 15-16 साल का एक लड़का है, शायद महाराष्ट्र में इंटीरियर में कहीं से है, वो थोड़े बाल कम है उसके, और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अजय देवगन और इन तमाम लोगों की जो फिल्मों के डायलॉग्स के वो करता है, टिकटॉक वीडियोस बनाता है, उसकी जो लिप सिंक है आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसका जो परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि मतलब आई एम श्योर रोहित शेट्टी या इन किसी की भी नजरों में वो आ जाएगा, तो वो आ चुका होगा, शायद उसको बुला लिया जाएगा। हाँ, शायद अगली फिल्म में देखें हम लोग उसको। हाँ। अच्छा, ये बताइए, दूसरा मेरा सवाल इसके अंदर छुपा हुआ था कि आप जैसे प्रोजेक्ट चूज करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, किस तरह से चूज करते हैं? आज जैसे आप अगर चूज करें कोई प्रोजेक्ट तो किस तरह से आप, क्या चीज आपको एक्साइट करनी चाहिए उसके बारे पहली चीज तो है कि उसका नरेटिव स्क्रिप्ट क्या है, कैसा पार्ट कर रहा हूँ मैं, क्या जो जो मेरी समझ है उसके मुताबिक, और दूसरा फिर ये जर्नी में किन लोगों के साथ करूंगा, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, को एक्टर्स कौन है, क्या होगा, मतलब उसकी मुझे बड़ी एक तरह से कहेंगे कि मुझे एक क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन कौन होंगे, क्या, अच्छा इस सीन में कौन सा एक्टर होगा या क्या होने वाला है। तो फिर मुझे वो बड़ा, उससे मुझे शायद संबल मिलता है, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, या कहें कि मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती है कि अच्छा ये लोग होने वाले हैं, तो चलो, क्योंकि आप एंड रिजल्ट के बारे में आप श्योर नहीं हो सकते जी। वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, वो हिट होगी, फिल्म हिट होगी, या वो वेब शो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन आपके अख्तियार में जो है, आपके जो कंट्रोल में जो है, वो तो आपको करने से कोई रोक नहीं रहा है। जी, इस चीज पे मैं थोड़ा और डीपर जाना चाहूंगा आपके क्राफ्ट में। आपने बात की कि आपके को एक्टर्स कौन होंगे, उस चीज को लेकर मैंने 2 सीन्स आपके हैंड पिक किए हैं जिसमें आपके साथ को एक्टर्स हैं, और एक प्रशांत है, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जब मेरे इसके ऊपर कि टिकटॉक में ऑटो लिपसिंक होता है। नहीं, मेरे ख्याल से उसको ऑटो लिपसिंक होता है क्या, मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरी जो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया उसमें ये होता है कि आपको वो उस पर मेहनत करनी पड़ती है, वो जो डायलॉग है उसको आप याद करके और कैसे उसको करेक्ट पॉजेज और वो सब तो आपको शायद करना पड़ता है। ऑटो मुझे नहीं, इसके बाद माफी चाहता हूँ अगर ऐसा है तो, लेकिन मेरी समझ तो कहती है कि उसके अंदर वो जो पॉजेज हैं वो तो आपको क्रिएट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स के देखे हैं जिनके लिपसिंग अच्छे नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस ठीक होती है लेकिन वो इतना मजेदार नहीं लगता है उस खाली सिंक ना होने की वजह से। जी सॉरी संदीप, बताइए। देखिए अभी पता नहीं, प्रशांत को शायद ज्यादा पता है टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हमको पता नहीं है। जी, हो मुझको उसके सकता है। बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है ऑटो लिपसिंग का। मैं कह रहा था कि 2 सीन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, आपके शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें आपके साथ को एक्टर्स हैं, और क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया आपके बारे में कि जो तालमेल है आपका और एक्टर्स के साथ वो बहुत स्मूथ होता है, और लगता है कि बहुत लेन देन होती है उसमें। जैसे कि एक एक्टर का बिग हार्ट होना बहुत जरूरी है कि दूसरे को उसका मोमेंट भी मिल जाए और जी आपको आपका मोमेंट मिल जाए। जी। तो पहला सीन प्ले करते हैं, टीवीएफ का एक सीन है, आई थिंक कमल यू कैन प्ले इट,
and then I can go deeper into Gajraj sir's head about his craft. भी भर दिया है। फॉर्म भी भर दिया। फॉर्म भर दिया तो हमसे बिना पूछे डिसीजन ले लिया। अब जब डिसाइड कर ही लिया है तो ज्वाइन कर लो आर्मी, जुम्बा ज्वाइन कर लो, सारा ज्वाइन कर लो, जो मन में आए ज्वाइन करो। हम होते कौन है तुम्हारे? हाँ, जब से 3 साल का था ना तब से ये सवाल पूछ रहे हो। लगते क्या है, बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। ये होता है इमोशनल ब्लैकमेल। मैं तो कॉन्वर्सेशन कर रहा था। हाँ तो कॉन्वर्सेशन कर लेते ना, बात कर लेते ना, ऐसी क्या प्रॉब्लम है आर्मी में जाने में? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मैं गजराज में जानना चाह रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग सीन है कि जैसे ये फादर ने कहा कि फॉर्म भर लिया है तो कर लो भाई, है ना। अब यही डायलॉग्स, I'm not even saying a change of script, यही डायलॉग एक एंग्री फादर भी बोल सकता था। लेकिन इसमें जो आपका पिच ऑफ परफॉर्मेंस है ये बहुत जेंटल है। मतलब बहुत बहुत अच्छे से आपने ऑडियंस को उस दिशा में, जैसे छोटे से पत्थर को ले गए हैं कि बहुत जोर मारी आपने उस चीज को। तो ये जो डिसीजन है कि ये पिच ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, वेदर यू शुड बी एंग्री, वेदर यू शुड बी जेंटल, ये जैसे आपका था डायरेक्टर के साथ तालमेल करके हुआ, क्योंकि ये बहुत तरीके से हो सकता है ये सीन। ये मुझे जहां तक मेरी या दर्श धोखा नहीं दे रही है तो ये जो इसके डायरेक्टर थे राघव सुब्बू, और राघव सुब्बू ने ये डायरेक्ट किया था, तो वो बड़ा जेंटल जायंट है। वो उस तरह की उसकी समझ है, वो बड़ा एकदम फ्रेंच सिनेमा जोन में जाता है वो। अच्छा। वो मुझे लगता है कि ये उसी की कारस्तानी थी। और जो राइटर हैं दोनों, चंदन और शेफाली पराशर, ये लोग भी थे सेट पे। तो उन्होंने चंदन ऐसे राइटर हैं टीवीएफ के जो कि बहुत एकदम पंचायत उनका लिखा हुआ है। तो वो घुस जाते हैं और बहुत बोलते हैं कि नुक्ता पंच ये मेरा ऐसा है वैसा। तो और दूसरी जो चीज हम लोगों ने शायद जो रिहर्सल में हम लोगों ने रियलाइज की थी या डिस्कशन किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो ये था कि हम लोग किस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम लोग इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है कि बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली, उसको लेके हम लोग उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। वो ऐसी चीज नहीं, क्योंकि इसको उस लिहाज से हमें कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है कि जिसके लिए बोला जाए कि, क्योंकि हर माँ बाप को लगता है, हो सकता है ऐसा कि भाई हमारा बेटा जाएगा सीमा पे या उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो कुछ और काम कर लो, है ना। तो वो डिपेंड करता है परिवार में, अगर फौज की परंपरा रही है तो उसमें बोलते नहीं वहां पे तो बड़ी खुशी खुशी बोला जाता है। जैसे मैं राजस्थान में है, हमारे कई रिश्तेदारों में तो ये जाना है, मतलब मानी हुई बात है कि परिवार में एक बेटा 2 बेटा तो जाएंगे ही जाएंगे फौजी होने में, मतलब गर्व है उस तरह का। या हिमाचल में परिवारों में होता है, या पंजाब में होता है उस तरह का। तो वो एक था कि हमें इसकी जो जॉब सिलेक्शन है इसकी, उसको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। हम लोग तकलीफ ये दिखा सकते हैं कि हमसे बिना पूछे कर ली। इंडियन माँ बाप की प्रॉब्लम क्या रहती है कि तुम मतलब इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने डिसीजन लोगे। तुम मतलब माँ बाप का बस चले तो 30 साल के बच्चों का भी टूथब्रश और कच्चे बनियान वही खरीद के दें। तो इसमें ये लेकिन जो आपने पकड़ा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। तो वो सारा का सारा वो कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है राघव सुब्बू जो डायरेक्टर है उनको जाना चाहिए। अच्छा,
और जैसे और एक्टर्स के साथ ये जो टाइमिंग आपने मेंटेन की शबनम के साथ, तो ये जो टाइमिंग है ये आपका क्या, जैसे आप क्या प्रेफर करते हैं कि पहले आप रिहर्स कर लें कि स्पॉन्टेनियसली आने दें? नहीं, उसमें दो चीजें होती है। एक तो जब आप किसी से पहली बार जिसके साथ काम करते हैं तो उसके अंदर आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि वो किस सोच का एक्टर या एक्ट्रेस है वो, है ना? क्योंकि आप हर इंसान सिमिलर नहीं होता है। कई बार होता है, ऐसा भी रियलाइज हुआ है कि मुझे लगा है कि मैंने मेरी बात से कोई नाराज हो गया। ऐसा भी मुझे लगा है कि भाई वो सामने वाले का ये कहना होता है कि मैं ऐसे ही करना चाहूंगी या करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे ही डायलॉग बोलूंगा या ऐसे ही डायलॉग बोलूंगी। आप, क्योंकि वो गिव एंड टेक वाली बात है ना। कई बार आप बोलते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको थोड़ा पुश कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा अग्रेशन आपके डायलॉग में आएगा तो मैं दे पाऊंगा वो, तो वो कई बार नहीं बनती है। लेकिन आप जिसके साथ काम कर चुके होते हैं तो उसमें एक कंफर्ट आ जाता है जी, आपको सिक्योरिटी हो जाती है, आप सिक्योर होते हैं एज एन एक्टर कि हाँ, ये सामने वाला अगर कुछ इसमें चालाकी दिखा रहा है, अपने कर्तव्य दिखा रहा है अपने कलाकारी में, तो उसका मकसद ये नहीं कि वो आपको छोटा दिखाना चाहता है, जी, जी, जी। वो सीन को मजेदार बना रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं साधु संत हूँ और मैं कहूंगा अरे नहीं नहीं, आप सारा आप सीन आप ले जाइए, मुझे वो फर्क। लेकिन जब ये मुझे अश्योर हो जाता है कि हाँ, ये कोलैबोरेशन हो रहा है और इसमें ये जो एक्टर या को एक्टर है मेरे, ये मुझे ऐसा नहीं चाहते कि मैं खराब दिखूं या मेरी परफॉर्मेंस खराब दिखे, तो मैं फिर उसके बाद इजी हो जाता है। और शबनम के साथ मैंने बहुत सारा काम किया हुआ तकरीबन 20 साल से, और जीतू के साथ तो खैर तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, तो ये 2 साल पहले का है शायद। जी, जी, तो वो उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप एक्टर्स को एक्टर्स के साथ आपकी कितनी दोस्ती है सेट पे आने से पहले, जी। कितना 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 सिक्योर हैं आप एक दूसरे से। अच्छा, और जैसे ये और उसमें 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 मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि अगेन ये भी मैंने शायद अनुभवों से ही सीखा है कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके को एक्टर्स आपकी मदद करें, आपके रोल को मांझने में, आपके कैरेक्टर को हेल्प करें, आपको उतनी ही मदद और उतनी हेल्प अपने को एक्टर्स के लिए भी सोचनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप जैसा जैसा आप उनके लिए आप प्रयास करेंगे, होता है ना कई बार, तो मुझे लगता है कि हम लोग कई बार बोलते हैं एक्टर्स के साथ में कि तू यहाँ पे कर ले या इस जगह पे पॉज देगा तो बड़ा अच्छा मोमेंट बन सकता है यहाँ पे। बिल्कुल। और ऐसी चीज जैसे जीतू है, जीतू से मुझे बहुत सजेशन मिलते हैं। शुरू में वो संकोच करता था, लेकिन फिर उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ। तो जीतू मुझे अक्सर टेक कॉन में बहुत उसने मुझे हेल्प किया है। फिल्म के अंदर भी कई 2-3 सीन ऐसे हुए हैं कि जहां पर जीतू का सजेशन से वो सीन अच्छा हुआ है। आयुष्मान अगेन उसी तरह के एक्टर हैं कि जो आपको सजेशन देना पसंद करते हैं और लेना भी पसंद करते हैं। नीना जी, मनु ऋषि, तो वो बड़ा कोलैबोरेशन। या सुनीता जो मनु की जो पत्नी बनती हैं, जी, तो ये तमाम जो कलाकार हैं बड़े सिक्योर थे इस सेटअप में भी, तो बड़ा आनंद है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे इसमें आपने सीन में एक छोटा सा पॉज दिया है और फिर कहा है कि ये होता है ब्लैकमेल। हाँ, ये जो पॉज है, मुझे तो लगता है वो पॉज इज फनियर देन द लाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो ये पॉज, जैसे व्हाट डू यू इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉजेस इन बोथ लाइंस एज वेल एज पॉजेस इन परफॉर्मेंस जो एक्टर के होते हैं, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है कि जैसे पॉज कई बार डायरेक्टर से डिक्टेट होते हैं या आप को एक्टर को बताते हैं कि देखो यार मैं यहाँ पॉज लेने वाला हूँ और अब लूंगा, या परफॉर्मेंस में जैसे पॉज नहीं होता है, जैसे कि आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करना चाहते हैं इन द मिडल ऑफ अ रोल, तो ये पॉज को, जैसे ये पॉज कैसे आया? जैसे यहाँ पर जो आपने जो पॉज लिया है, ये पॉज इम्प्रॉम्प्टू था कि प्लान था, कैसे था? मुझे बिल्कुल याद नहीं है संदीप, लेकिन मैं इसका क्रेडिट डेफिनेटली राघव को देना चाहूंगा, क्योंकि राघव का वो टेम्परामेंट है एक तरह का। तो मुझे लगता है कि राघव की कलाकारी होगी ये। और जो आपका ये सवाल है कि
हाँ। पॉज पॉज जो मैं रंजीत कपूर साहब के साथ मैंने थिएटर किया है दिल्ली में रहते हुए, जी। और वो कॉमेडी के एकदम बड़े, उनको श्रेष्ठ माना गया है हिंदुस्तानी नाटक की दुनिया में, कि जो उनकी जो कॉमेडी है उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। और वो जब भी उनका जो पॉज, जो मोमेंट्स वो क्रिएट करते थे, वो बहुत निराले होते थे। वो जिद करते थे, बाकी सब वो छोड़ देते थे एक्टर पे, लेकिन पॉजेज वो क्रिएट करते थे कि पॉज का जो मजा है, उसका जो सुख है, वो लेना चाहिए, उसकी तमीज होनी चाहिए एक्टर के पास। तो मैं मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई रंजीत भाई के साथ। तो मुझे उस समझ में आया कि खाली डायलॉग बड़ 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 बोल देना वो एक्टिंग नहीं है। पॉज, या जब आप रिएक्ट करते हैं, जब आप दूसरे एक्टर को सुनते हैं, वो ज्यादा मुश्किल एक्टिंग है। वहां पे ज्यादा आप ऑडियंस के करीब जाते हैं। तो पॉज जो है, बहुत बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। मुझे ये सवाल मेरे साथ शायद किसी से भी नहीं हुआ अभी तक पिछले कुछ सालों में, जब भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ पॉज, जब जो एक्टर लेते हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उसका। और अमोल पालेकर साहब, हाँ बिल्कुल। आप उनका सिनेमा देखिए, बासुदा की बात करें, हाँ। बासु चैटर्जी, तो कितने खूबसूरत पॉजेज वहाँ उनकी सिनेमा में क्रिएट होते हैं कि मतलब आपको हंसी वहां आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको डायलॉग्स पर हंसी नहीं आती है, पॉजेस पे आती है। जैसे इसमें शुभमंगल सावधान में वो एक सीन है जहाँ पे वो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, वो जो फांसी लगाने का जो नाटक करता है शंकर त्रिपाठी, और उसके बाद वो उफ करती हैं सुनैना त्रिपाठी, और मैं जो एकदम रुकी, तुम क्यों उफ कर रही हो। तो वो जो है, मैं सिनेमा हॉल में मैंने एक्सपीरियंस किया वो, कि वो ऑडियंस ने इतने बढ़िया से उसको कैच किया। अगेन ये वही वाली बात है कि आप पॉज कैसे करें कि जब पॉज जो होते हैं वो आपको, एक्टर को ऑडियंस के और नजदीक ले जाते हैं, उससे जोड़ते हैं। ऑडियंस उसको और लाड़ देती है मेरे ख्याल से, या उसको उसकी बातें सुनती है फिर, कि हाँ ये खाली डायलॉग उगल नहीं रहा है, हाँ हमसे कनेक्ट कर रहा है। जी। मुझको तो लगता है कि मुझको लगता है जैसे कि पॉज देने से ऑडियंस की इमेजिनेशन इवोक हो जाती है, क्योंकि डायलॉग आपने अभी बोला नहीं है, तो वो क्षण में ऑडियंस को कई बार इमेजिनेशन स्पार्क हो जाती है कि अभी क्या बोलने वाला है, तो ऑडियंस इन्वॉल्व और ज्यादा हो जाती है, खिंच जाती है, जैसे आप कह रहे हैं, दे गेट मोर इन्वॉल्व विद द परफॉर्मेंस। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे आप वेब सीरीज भी करते हैं, एड फिल्म भी करते हैं, फीचर फिल्म भी करते हैं, तो आपको अगर कहा जाए कि अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, शूट शुरू हो जाए, कि आपके पास चॉइस हो कि भाई वेब सीरीज करो या फीचर फिल्म करो, तो आप क्या पसंद करना, क्या मतलब एज अ मीडियम आप किसी चीज को प्रेफर करते हैं? मैं फीचर फिल्म करूंगा, इज दैट अ कंसिडरेशन? ये वैसा है संदीप, कि आपको जब भूख लगती है, अच्छा खाना खाने का मन करता है, तो कई बार आप उडुपी में जाते हैं, राम आश्रय जाते हैं, है ना, नाथूस जाते हैं, बंगाली स्वीट्स जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैरियट का जो लोटस कैफे है ना, या बर्ड सॉन्ग है बैंड्रा में, तो वहां पे बढ़िया खाना मिलता है थोड़ा सा। तो मेन मकसद है कि आपको कहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं, जी। कहाँ पे क्या माहौल कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, लोग कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है मुझे लगता है। क्योंकि सब में मेहनत एक सी होती है। जैसे आज की तारीख में टेलीविजन जो सीरीज बन रही है, ओटीटी नहीं, अपना वेब शो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो सीरीज बनते उसमें बड़े कमाल की मेहनत होती है। उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है, और उसका प्रोडक्शन डिजाइन से लेके बहुत बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है उसके अंदर, और बड़े नामचीन एक्टर्स उसमें करते हैं। तो सब कुछ बॉयल होता है, सब कुछ आता है कि भाई आप कैसी जर्नी करना चाहते हैं, किन लोगों के बीच में आप रहना चाहते हैं। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि राइटर, डायरेक्टर, को एक्टर्स कैसे हैं, और उसके बाद वो शॉर्ट फिल्म भी है अगर,
लंदन में शूट हो रही है और तो मैं उसके लिए राजी हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अच्छा, ये अभी एक और हम सीन प्ले करेंगे बधाई हो का। और अगेन ये सीन जैसे जिसको बोलते हैं ना एक्टर्स के लिए, ये आपका सीन नहीं है, ये सुरेखा जी का सीन है। लेकिन मुझे बड़ा कमाल का लगा तालमेल सब एक्टर्स का इसमें, और मैं इसके बारे में जानना चाह रहा था। लेट्स प्ले द सीन फर्स्ट। इट्स अ वेरी टचिंग। ये मतलब है बड़ा कमाल का है ये, मतलब कुछ सीन तो ऐसे हैं इसमें। एक और सीन है नीना जी का, जब वो हम लोग मेरठ से आते हैं और वो घर में आता है आयुष्मान और पूछती खाना खाया। वो मैं अभी जब भी देखा है मैंने आसपास में, तो वो एकदम गला भरा था उससे। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट सीन है। मैं जानना चाहता हूँ, देखिए बड़ा मुझे लगता है बहुत इट्स अ वेरी वेल रिटन सीन, पहली बात तो। ये और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इमोशनली, मुझे लगता है। जैसे एक तरह से इमोशंस, माँ जो है नाराज भी हैं, आप उनको बिठा रहे हैं, उनको काम डाउन कर रहे हैं, चिंतित हैं। फिर माँ शुरू होती हैं कि जैसे कि नीना जी के खिलाफ कुछ बोलने वाली हैं, उसमें एक आपका रिएक्शन है, एंड देन the whole thing changes, turns when she talks about your father having sadbuddhi and taking the right decision. And उसके बाद एक और आपका लुक जाता है नीना जी को, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है वो लुक, जिसमें कि आप, ये चीज एक बैकग्राउंड है फिल्म में कि नीना जी का कैरेक्टर इज ऑलवेज फीलिंग दैट हर मदर इन लॉ डजंट अप्रिशिएट हर, और वो एक तरह से आपका एक लुक क्या है कि देखो ये मिल रहा है तुमको, ये है, ये मेरी माँ फील करती है। तो जस्ट टेक अस थ्रू दिस, ये किस तरह से, जैसे बहुत ही टेंडर सा सीन है जिसमें सारे एक्टर्स ने कमाल का परफॉर्म किया है, तो आप लोग ने क्या, बिकॉज एक तो होता है क्राफ्ट जिसमें कि हम लोग बैठ के रीडिंग कर लेते हैं, सीन की समझ लेते हैं, लेकिन एक ये भी तो होता है ना कि जैसे इमोशंस को टेक से पहले प्ले आउट ना करें, है ना, उस मोमेंट को टेक के अंदर ही एक्सप्लोड करें इमोशंस को। एक ये भी तो होता है एक्टर्स का कि अभी पहले रिहर्सल में ही पूरा हमने इमोट अगर कर लिया तो टेक के समय हम लोग खर्च हो गए। तो ये किस तरह से आप लोग ने किया? ये आई जस्ट वांट टू नो दिस सीन, किस तरह से आपको याद है तो सुरेखा जी की ग्रेट परफॉर्मेंस इन दिस सीन एंड नीना जी, और आप किस तरह से आप लोग ने किया? ये बहुत ही एकदम आप मुझे 2.5 साल पहले लेकर चलेंगे संदीप। तो हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे थे, ये 12 खंबा रोड के आसपास एक बंगलो है, और मतलब मालूम था कि क्रिटिकल सीन है, लेकिन उसका जो वजन है वो उसको हमने रियलाइज नहीं किया था। मैंने तो नहीं रियलाइज किया था, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे लैंड होगा। ये उसके बाहर का जो सीन था वो हो रहा था कि मैं और मेरे दोस्त हैं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, इतने में नीना जी आती हैं, अम्मा फट पड़ी हैं, और वो तब तक भी नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या कैसे होगा। और उससे पहले जो अंदर शूट हो रहा था वो सुरेखा जी और वो दोनों बहुओं का जो सीन है, जो इंटरेक्शन है, वो हुआ था। और उसमें थैंक यू सॉरी। तो जहां तक मेरे कैरेक्टर का इसमें सवाल है, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरे ज्यादा डायलॉग्स नहीं है, और मैं उसको उसी तरह से ले रहा था कि हाँ एक सिंपल सा कुछ एक दो कट आएंगे और मेन सीन ये अम्मा का है, अम्मा बोलेंगी, और उसके बीच में नीना जी और अम्मा का कुछ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। पर ये यहाँ पर इसका कल्मिनेशन ऐसा होने वाला है, ऐसा मैंने नहीं सोचा। लेकिन सुरेखा जी की जो वोल्केनिक एनर्जी है इस उम्र में भी, वो तूफान है। इससे पहले हम लोग मुंबई में वो सीन कर चुके थे, घर वाला,
जो रात में मैं उनसे बोल देता हूँ और रियलाइज नहीं करता हूँ कि उन्होंने हियरिंग एड नहीं लगाया हुआ, और सुबह जब मालूम चलता है और वो बोलती है, अरे मैंने तो कही थी ये कर दे, तूने तो अपना ही कर दिया। और वो जो 3-4 पेज का डायलॉग है, वो 3 पेज का एटलीस्ट पूरा सीन है वो, और जिसमें ज्यादातर डायलॉग अम्मा के हैं। और वो जिस तरह से उन्होंने एक उम्र दराज शेरनी की तरह जो उन्होंने किया था सुरेखा जी ने, वो हम लोग सब हैरान थे। और उसमें मतलब मैंने तो अमित को बोला, यार कि तू 3 जगह से तूने कवरेज ले लिया है, देख ले, मतलब और करना है क्या? तो वो जुनून में बोल रहा, नहीं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और वो उनको और जेद सुरेखा जी को कि मैं और करती हूँ और करूंगी इसके अंदर, तो ना उनका कुछ एक ग्राफ, लैंग्वेज, बीच में एक्सेंट कहीं छूट गया तो वो अक्षत जो राइटर हैं वो करवा रहे हैं कि नीना जी ऐसे बोलिएगा इसको। तो वो एक एक्सपीरियंस किया था हमने कि हाँ, ये हम लोग हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोग इतने गजब की एक अदाकारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस हम लोग कर चुके थे। और जब ये दिल्ली वाला सीन हुआ और जिस तरह से वो उन्होंने उसको आर्टिकुलेट किया, उसको वो मॉड्यूलेशन जो उनका था दोनों बहुओं को लेकर, बाप रे बाप, उसमें हम लोग हमारे रोंगटे खड़े हो चुके थे ऑलरेडी। मतलब उस सीन का माहौल ऐसा कह सकते हैं कि किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सुरेखा जी ने उस सीन का एक ग्राफ तय कर दिया था उन्होंने, क्या होता है। और उसके बाद मुश्किल सीन था, डेफिनेटली मुश्किल सीन था। और ये मुझे याद है कि अमित ने उसको 2-3 अलग अलग तरीके से उसको कोरियोग्राफ करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से, कि मैं जाके बैठता नहीं हूँ, खड़ा हूँ, पिलर के पास खड़ा हूँ, अम्मा भी खड़ी हो जाती है, और वो सब अलग अलग एंगल से देख के फिर फाइनली शायद ये 1-1.5 घंटे बाद अमित को ये लगा कि हाँ, ये जो बॉडी लैंग्वेज बन रही है, ये जो बैठना है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कि हम लोग अपनी तरह से आए, मीना जी और मैं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे कि कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर ताकि वो फ्लो आगे बढ़े। और वो जो लुक है शेयर करना, वो आई गेस कह सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस है बहुत, क्योंकि वो इतना खूबसूरत उसकी जर्नी थी संदीप की। हम लोग मतलब दोनों के दोनों मिस्टर एंड मिसेस कौशिक थे, हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर रहे थे। हम लोग अच्छा, प्रियंवदा और जितेंद्र थे हम लोग, मतलब कट्स होते थे, मालूम चलता था, लेकिन जब सीन में होते थे तो हम वो कैरेक्टर हमें भाग गए थे, हम उनके बहुत नजदीक थे, हमें उनकी प्रॉब्लम्स हमें बड़ी अनरियल नहीं लगती थी, हमें रियल लगती थी। और क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों से तो ऐसी चीजें मैंने देखी हुई हैं जी, सबने देखी हुई है कि भाई क्या होता है, ये जो कलेश होते हैं छोटे छोटे जो जोड़ के रखते हैं एक दूसरे को। तो वो जो उसका शायद 3 या 4 टेक उसने लिए थे अमित ने, और मतलब वो हो रहा था, मतलब वो जो एनर्जी जो आ रही थी, सुरेखा जी जो बोलती हैं, पकड़ती हैं कि तूने, तेरे पिताजी ने ये करी इसको, और वो मतलब उनके कहने के उसमें अपने आप गला भरा रहा था और अपने आप आंखें नम हो रही थी, ग्लिसरीन की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। और सिमिलर एक्सपीरियंस मीना जी का भी था, उनको भी वही एनर्जी महसूस हो रही थी, और शायद वो बड़ा बड़ा अचीवमेंट जैसा फील हुआ था उस दिन भी कि भाई ये हम लोगों ने अचीव कर पाए, जो कि सोचा नहीं था। सुबह जब आए थे तो मैंने नहीं सोचा था कि इसका ये ग्राफ बनने वाला है। तो कह सकते हैं कि राइटिंग और सुरेखा जी एंड डी अमित शर्मा। कहीं पर इसमें ये भी एक तरह से मैं कहूंगा कि लेसन है एक्टर्स के लिए जो सुन रहे हैं कि एक क्राफ्ट है जिसमें कैमरामैन आपको कह रहा है कि भाई ये लाइट के नीचे आओ, इतने स्टेप्स में ये करो, लेकिन एट द सेम टाइम उस मोमेंट में अपने को एक्टर के परफॉर्मेंस में बह जाना, वो अपने आप में वो दैट्स द आर्ट पार्ट आई गेस। हाँ, मतलब उसमें अमित ने ये शायद किया, अमित ने और सानू जो सिनेमेटोग्राफर थे, वो एक अच्छी बात की कि सानू भी जो है वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं, मतलब सिनेमेटोग्राफर हैं लेकिन उनको स्टोरी में मजा आता है, खाली वो टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं देखते। तो उन दोनों वो तो जिद नहीं करते हैं कि ये आप छुप रहे हैं या आप लाइट लीजिए, वो एक्टर्स के हिसाब से एडजस्ट करते हैं।
हाँ, कि अगर कहीं पे ऐसा हो रहा तो उसको कटाक से बोलेंगे तो रुकिए 2 मिनट, मैं ऐसा कर देता हूँ। और अमित ने भी हमें उन बंदिशों में बहुत रेयरली डाला, रेयरली ऐसा किया कि नहीं आपको, वो शायद लोकेशन में उस कमी की वजह से या कुछ ऐसा हुआ होगा तो ठीक है, गाड़ियों के सीन जो हुए, कार के अंदर के सीन, लेकिन ज्यादातर वो वैसा हो तो उसको वो पहले रिहर्सल करता था, पूरी रिहर्सल करवा के आपका क्या क्या कहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी फाइनल लाइटिंग उसके बाद करता था। अच्छा। एक चीज मैं तो पूछना हमको चाह रहा हमको हमको ये एज एन एक्टर के डर नहीं रहता था कि मैं ये 2 स्टेप ऐसे जाना है, फिर 3 स्टेप ऐसे जाना है, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं करना है। जी। वो हमें हमारी 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 जिम्मेदारी नहीं थी। So the technical unit used to act the actors. That's great. एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप स्क्रिप्ट या सीन में, डायलॉग्स में, या जिस तरह से सीन लिखा गया है, उसमें आप कितना इनपुट देते हैं? मैं खास तौर से ऐसे एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट है, और एक एक्टर को परफॉर्म भी करना होता है, और कई बार उसके सामने शायद सीन आए जिसमें उसको सजेशन करने का मन करे जस्ट टू बी कंफर्टेबल। अच्छा, इसमें किस हद तक वो जाए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, खासतौर से जब आप बिगनर हैं या पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रोल मिला है, पार्ट मिला है 4 बार ऑडिशन करके। तो आप क्या एडवाइस करेंगे एक्टर्स को इसमें कि कितना, जैसे स्क्रिप्ट में अगर कुछ लगे तो क्या डायरेक्टर से बात करें या चुपचाप कर लें? तो अगेन ये एक कॉमन सेंस जो एक चीज होती है, एक चिड़िया होती है, वो उसको अपने पास जरूर रखिए हमेशा, कॉमन सेंस, क्योंकि उसकी जरूरत एक्टर को सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि आप ये एहसास करें, ये सोचे कि जो अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो वो डायरेक्टर से आप कब शेयर कर रहे हैं, शूट से पहले आप अपने रोल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बताएं, उस वक्त आप होमवर्क करें, उस वक्त आप सोचें। जैसे मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा कर पाऊं मैं, क्योंकि सेट पे डायरेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है। वो 4, 6, 8, 10 अलग अलग एक्टर्स के टेम्परामेंट के साथ जूझ रहा होता है, मौसम के साथ जूझ रहा होता है, टेक्नीशियंस के साथ उसके चल रही होती चीजें चल रही होती, प्रोड्यूसर अगर दूसरे हैं कोई तो वो एक परेशानी होती है कि कैसे ये सीन आज खत्म करना है, आज ये सेट हमारे पास 2 ही दिन के लिए है। वो तमाम चीजें होती हैं क्योंकि सेट पे जाके कुछ और हो रहा होता है, अक्सर जो आपकी स्क्रिप्ट में होता है उससे अलग होता है, कुछ आपने जैसा सोचा होता है उससे अलग होता है। जो मैं अपने एड फिल्म्स के डायरेक्शन के बारे में मैं कह सकता हूँ उस एक्सपीरियंस से 15 साल की, कि मैंने अक्सर ऐसा हुआ कि जो मैंने नहीं सोचा, कई बार अच्छे के लिए होता है और कई बार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो और दूसरा चीज होता है कि अगर आप किस स्टेज में है अपने करियर के, कि जरूरी है कि भाई डायरेक्टर आपकी बात सुने तो क्यों सुने, जी, कि उसके पीछे क्या आप क्या एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने शुरू ही नहीं किया, आपने कोई एक्सपीरियंस ही नहीं और पहला दूसरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपको, मुझे लगता है कि डायरेक्टर की बातें सुन लेनी चाहिए, या जो टीम में राइटर्स हैं या को एक्टर्स हैं वो बड़ी हेल्प करते हैं आपको। अक्सर अगर आप जूनियर हैं तो आप को एक्टर्स के साथ आप तालमेल बैठाइए, जो सीनियर हैं थोड़ा सा जो आपको सही राह दिखा पाए। कई बार होता है ऐसा अक्सर मुझे तो मेरे जो सीनियर एक्टर्स ने मेरी मदद की है, अक्सर मदद की है, मुझे बताया है। जो टेक्नीशियंस हैं जैसे दिल से में संतोष सिवन मुझे हेल्प करते थे, वो मुझे बताते थे कि फ्रेम में आ जाओ, तुम बाहर हो फ्रेम में। हाँ, तो जैसे मणि सर में नया था, चूजे सा अंडे से निकला हुआ, और थिएटर किया हुआ था, तो मुझे लगता था कि मैं सजेशन दूंगा और वो सुन लेंगे। तो एक सीन था उसके अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट यूनिट जाती है और बॉम्ब की खबर मिली है और मैं जाके उसमें ढूंढता हूँ और फिर वो टीम आ रही है पीछे से। तो मैंने रिहर्सल में ये किया, मैंने कहा सर, गया और करके दिखाता हूँ क्यों बॉब इज हियर, ऐसा करके कुछ किया मैंने। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि नो गजराज, यू आर नॉट सपोज टू से एनी डायलॉग,
It is camera. Camera will convey this information to my audience. That's how I have seen this scene. अच्छा, अब क्योंकि होता है ना कि डायलॉग की खोज की लाइन बढ़ जाए, कुछ हो जाए, तो अगेन वो आपको देखना चाहिए कि आप किस माहौल में किस तरह से। तो एक दो ऐसे हादसे हुए, वाकयात हुए, तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, ये इनकी सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और शाहरुख खान है और ये सब, तो मुझे यहाँ पे ज्यादा चंचल नहीं होना है। मुझे जो बताया जा रहा है वो करके खत्म कर देना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ शेखर कपूर थे, वो बड़े सजेशंस लेते थे। या उसके बाद जो ब्लैक फ्राइडे, अनुराग कश्यप, अगेन क्योंकि वो एक उस तरह की जुगलबंदी थी कि उन्होंने मेरा थिएटर देखा हुआ था और एक एक्सपीरियंस की कदर थी, तो उनको मेरी बातें कई चीजें समझ में आती थी और कई चीजें बोलते थे कि नहीं गज्जू भाई आप ये मत करिए, ये थोड़ा फनी हो जाएगा या ये आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा, इसको मत करिए। लेकिन सजेशन मैं वहां दे तो आपको ये खुद आपको एक्सपीरियंस करके अपने अनुभव से ये देखना होगा कि किस डायरेक्टर को आप किस माहौल में सजेशन दे रहे हो और कितना वो खाली। और या कई बार ऐसा भी होता है ना, मैंने छुटपन में किया हुआ ऐसा कि इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा कम करें। हाँ, मतलब आपने जो कहा डायरेक्टर के बहुत सारे सेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं। I'm very thankful to you for saying that to actors because directors are very preoccupied on the shoot. और कई बार मैंने देखा है कि ये इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट होता है, एक्टर क्यों बोल रहा है, क्या सीन की बेहतरी के लिए बोल रहा है कि भाई मेरा फुटेज बढ़े इसलिए बोल रहा है। एग्जैक्टली, वो बैलेंस। ऑब्वियसली अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी ख्वाहिश होती है कि आपका रूप थोड़ा अच्छा हो जाए या इसमें मजेदार हो जाए या कुछ। जैसे वो सानिया जब घर आती हैं बधाइयों में पहली बार, तो वो सारा जो कुछ इम्प्रोवाइजेशन है उसके अंदर कि वो बालकनी में चला जाता है और वो टॉवल देना लेना, या वो जो कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मेरे चाय का ऑफर करने पे सानिया बोलती है मैं चाय नहीं पीती हूँ। मैं बोलता नहीं चाय तो हम भी छोड़ना चाहें लेकिन बाथरूम जाने में बाथरूम क्लियर ना हो, तो वो इम्प्रोवाइज कर दिया, वो इम्प्रोवाइज किया। और अब ऐसा कई बार हुआ कि मैंने कुछ चीजें बोली जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, तो अमित ने कई बार तो एकदम से स्ट्रेट उसको ब्लॉक कर दिया, वीटो कर दिया कि नहीं गजा जी ये मत कीजिए, ये कैरेक्टर से अलग हो जाएगा। लेकिन कई जगह बड़ा खुश होता था, उसकी आंखों में स्माइल आती थी। और यहाँ पे भी ऐसा वो लोग अरे हाँ नहीं गजा जी करिए, ये अच्छा है, ये बढ़िया। तो वो बैलेंस की जरूरत है मेरे ख्याल से, देखना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, एक सवाल ये था कि जैसे कि अब जैसे बधाई हो है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान है, एक जो कॉम्बिनेशन बन जाती है एक्टर्स की हमारी इंडस्ट्री में, खासतौर से गजराज मीना जी, तो नाउ आप लोग बधाई हो में भी हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे हैं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में भी, हाउ डू यू कीप इट फ्रेश एज अ कॉम्बिनेशन, हाउ डू यू कीप दैट फ्रेश, ऐसा ना हो कि ऑडियंस को बिल्कुल सेम टू सेम भी लगे बट थोड़ा सा रिमाइंड भी करें। बिल्कुल बहुत सही ऑब्जर्वेशन है ये। तो उसमें शायद एक तो ऑडियंस भी कई बार होता है ना कि कैसे बताऊं मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाने का भोजन का होता है, तो कई बार आप कहीं किसी शहर में जाते हैं, किसी स्टेट में किसी प्रांत में जाते हैं और आपको कुछ खाना जो है वहाँ का लोकल बड़ा अच्छा लगता है, तो आप उसको रिपीट करना चाहते हैं। कि राजमुंद्री में मैं शूट कर रहा हूँ या चेन्नई में शूट कर रहे हैं, आंध्रा में शूट कर रहे हैं, तो वहाँ का लोकल क्विजीन है जो आंध्रा फूड है, या जैसे मुझे वो करेक्ट जगह का नाम नहीं याद आ रहा, तमिलनाडु में है जहाँ पे वो हिली अपना हिल्स के आसपास है, वहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा। लोकल बिरयानी। अच्छा। मतलब वो बिरयानी लोग पैकेट्स में ले जाते हैं। तो मैं वहाँ पे 6 दिन था, वो 6 दिन दोपहर और शाम मैंने वो बिरयानी ही खाई। मैं उसका उधर ना जायका समेट लेना चाहता था, जो एक बार में शायद वो मजा एक, अरे यार क्या बिरयानी, उसमें बड़े छोटे छोटे पीस होते थे, नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन। और तो ऑडियंस के लिए भी शायद यही होता है कि एक बार कुछ चीज अच्छी लगी तो उसका रस और लेना चाहेंगे वो, कि भाई अरे यार वो वहां पे बड़ा मजा आया था इन दो आर्टिस्ट के साथ, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो वो अब अगेन किस तरह का प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। कि वो बधाई हो जैसा ही होता अगर, तो शायद बोरियत हो जाती है, लोग बोलते कि भाई क्या
दिमाग खराब है क्या इन लोगों का, सेम सेटअप सेम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक दो प्रोजेक्ट आए भी कि सेम मिलियो में और कुछ सेम तरह की ही इश्यूज के साथ परिवारों का, तो हमने मना किया, भाई नहीं मैं तो नहीं इंटरेस्टेड होऊंगा। लेकिन ये जो था मिलियो अलग था, इसमें जो कैरेक्टर्स अलग हैं कि जैसे वहां पे प्रियंवदा है, वो उसका अलग टेम्परामेंट है, वो एडजस्ट करके चलती है, बहुत रेयर उसका गुस्सा निकलता है। लेकिन यहाँ पे सुनैना त्रिपाठी जो है वो चंडी है, वो अपनी चलाती है, मतलब कर लेंगी एडजस्ट कर लेंगी लेकिन वो सुनाएंगी जरूर। वहां पे जितेंद्र कौशिक है जो बहुत सबड्यूट, सारे परिवार को जोड़ के रखना, संभालना, एडजस्ट कर लेना, मुंह से आवाज ही निकलती है। यहाँ पे वो बिफरता है, सन की किस्म का कह सकते हैं, एक तरह का प्रोफेसर है वो वनस्पति शास्त्र का, तो वो एक चीज अलग हो गई। और अगेन कि जो आयुष्मान के साथ जो हमारा रिश्ता है इसके अंदर वो अलग है, तो वो अब अगेन वो एक सोच समझ के बहुत इस पे मंथन करके किया गया काम है कि बड़ा ऊहापोह की बात कि ऐसा होगा कैसा होगा, और फिर आपको लगता है कि आनंद राय जैसे बड़े नामचीन निर्माता के साथ आप करेंगे और टी सीरीज कर रहा है, और ये हितेश कवलिया जिन्होंने पहली शुभ मंगल लिखी थी उनके साथ काम करेंगे आप, तो ना आपको बहुत सारी चीजें हाँ अब ना हो रहा होता है। जैसे नीना जी ने बोला, वो मुझे उसने बड़ा मुझे प्रेरित किया कि बोला कि ये अच्छा मजा आएगा इसमें, गजराज जी कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, ये जो अलग सी स्क्रिप्ट है और इसको एंजॉय करेंगे हम लोग, है ना। और उसी तरह से जब रीडिंग वगैरह में आयुष्मान से मिले और जीतू के साथ भी एक अलग सी जर्नी हुई, मानवी, तो वो अगर अगेन अब ये सिमिलर कैरेक्टर हम कहीं और करेंगे तो शायद हमें भी बोरियत होगी और ऑडियंस को बोरियत होगी। लेकिन जब तक कि हम लोग शायद इसका 3-4 प्रोजेक्ट और कर सकते हैं ऐसा, जहाँ पे हमें अलग अलग, लेकिन वो मिलियो अलग हो और उसका नैरेटिव अलग हो, थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा अलग। तो क्या इसका मैं ये कंक्लूजन निकालूं हमारे एक्टर्स जो सुन रहे हैं कि अगर एक्टर बोर नहीं होगा या जो भी क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं बोर नहीं होंगे तो ऑडियंस भी बोर नहीं होगी। एब्सोल्युटली, आप क्योंकि आप उसको कितना रिफ्रेश कर सकते हैं, कितने मजेदार तरीके से आप उसके अंदर अपनी नई कहानी, जैसे बधाई हो में नीना जी के साथ जो इंटरेक्शन होता था या जो चीजें होती थी बड़े अलग किस्म की होती थी, क्योंकि उसका ग्राफ अलग था, उसके अंदर उसकी जो सेंसिटिव मोमेंट अलग तरीके के थे, है ना। और यहाँ पे कुछ अलग था, चुगलबाजी थी इसके अंदर, अल्हड़पन था। अच्छा ये बताइए एक सवाल, खैर ये तो सवाल आ रहा है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन वैसे भी एक्टर्स के जनरली ऑफ डेज बहुत होते हैं। सॉरी फिर से बोलिए। ऑफ डेज बहुत होते हैं। ऑफ डेज बहुत होते हैं वैसे भी, मतलब लॉकडाउन में तो है ही ऑफ डेज, लेकिन वैसे भी शूट्स के बीच में गैप्स होते हैं कई बार, खासतौर से अगर वो चुनिंदा काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें हमारे एक्टर्स जो कि अपने आप को तैयार करते रहे जब उनका ऑफ डे है, जैसे आप किस तरह से अपने आप को तैयार ओवर द इयर्स किया है, कुछ वो घर पे करें, पढ़ें, देखें, खुद के रिहर्सल्स करें, कैसे? अगेन संदीप, ये इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, और हमारे यहाँ पे जो एक्टर है, अभिनेता या अभिनेत्री हैं, वो अगर कहें ऐसा कहें एग्जांपल दें कि यूरोप में जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस की जिंदगियां होती हैं, जितना मैंने जाना है, बड़े अलग अलग एक बेतकल्लुफी की जिंदगी होती है, प्रेशर पॉइंट्स कम होते हैं, कमाने की उतनी ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि एक तो वेलफेयर स्टेट्स हैं ज्यादातर, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएंगी। जैसे कई देश हैं जहाँ पे न्यूजीलैंड में शायद, या यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अलग अलग फॉर्म्स में, उनको सरकारों ने मदद की है, फाइनेंशियल हेल्प की है अभी के दौर में। तो वो, ताकि वो सोचे ना कितनी सरकार के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो एक्टर्स की चिंता कर पा रही है कि इनको अपना पेट भरने की चिंता नहीं होनी चाहिए, अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्टर, कह सकता हूँ कि कैसे कहना चाहिए, एक बुरा भी लग सकता है लोगों को, एक तरह की मेहनत कशी है एक्टर होना। कोई बहुत उसका थोड़ा बहुत ग्लैमर है, लेकिन
जो जिम्मेदारियां बाकी हैं, क्योंकि आपके पास काम नहीं है वो तो एक चीज है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो जो है वो खेल करता है और वो आपको कंटिन्यूसली उलझा के रखता है, बच्चों की स्कूल की फीस में, जी मकान के किराए में, जी घर में किसी बुजुर्ग के या किसी फैमिली मेंबर की दवाओं के लिए, कुछ ईएमआईज में। जी तो उसके बीच में बहुत बहुत मुश्किल है कि आप क्रिएटिव हो। जी मुझे ऐसा 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 आभास होता है, या जैसे मैं जानता हूँ लोगों को, तो बड़े तकलीफ भरे दिन होते हैं अगर आप एक्टर हैं हिंदुस्तानी थिएटर में या टेलीविजन में, जब अगर अनलेस आपकी कुछ सिचुएशन अच्छी हो गई है, जी तो वो इस जब तक कि हमारे जो स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उसको लेके कंसर्न ना दिखाएं, तब तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि उसको उसको अपने अंदर की उसको जिलाए रखना। बस वही है कि आप पढ़ें, क्योंकि देखिए जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने एक एक्टर को सजेस्ट किया कि भाई तुम लैंग्वेज सीख लो कुछ इस बीच में, या स्पेनिश कुछ सीख लो या कुछ म्यूजिक सीख लो। तो उसने बोला कि सर उसके लिए भी तो फीस देनी होगी ना, मैं कहीं जाऊंगा तो उसके लिए किराया देना होगा। तो वो एक बहुत मुश्किल है। तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ा अटपटा है मेरे लिए उसके लिए सुझाव देना। मैं यही कह सकता हूँ कि आप जहाँ तक हो सके अपने कठिन समय में, जब काम नहीं है या ऑफ है, और वो आपकी आपकी इच्छा से ऑफ नहीं है, जी आपके चाहे से आप घर पर नहीं है, तो उसमें ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मन को संभाल के रखें, दिमाग को आप अ, ऊर्जा देते रहें, एनर्जी देते रहें अलग अलग तरीके से, किताबों से या योगा से। यही कहना चाहूंगा मैं। जी। अब मैं कमल को रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हैं चैट पे। कमल, वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस टू गजराज सर? यस यस सर, कुछ सवाल आए थे जो कमल कमल, सबसे पहले ये बताओ कि आपके चेहरे पे कृष्ण भगवान की तरह लाइट कहाँ से आ रही है बार बार? सर वो लाइट एक यहाँ ये पर आपने कुछ नहीं, फ्रंट से आ रही है, तो आपने कुछ मैनेज किया है, कुछ एक क्रिएटिविटी निकाली है, ये क्या हो रहा है ये? नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये एक्चुअली लाइट ऊपर से मेरे ट्यूब वो कमल तो तो तुमको हेलो 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 फील आ रहा है पीछे से। कमल तुमको जवाब देना नहीं आता है। तुम बोलो गजराज से कि आपने जो बातें कही उससे मैं एनलाइटन हो गया। सर इतना क्रिएटिव, सर मैं कॉन्वर्सेशन में इतना खो गया था कि इतना क्रिएटिवली सोच नहीं पाया मैं। अगेन 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 मैं एक चीज संदीप कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा ये पीछे इंटरव्यूज वगैरह तो खैर होते हैं, तो उसके अंदर आप थोड़ा सोच समझ के बोल लेते हैं, लेकिन ये जो पिछले 2 महीने में लाइव हुए, मुझे मेरे लिए अटपटे भी होते हैं कई बार। मुझे बड़ा ऑड भी लग रहा होता है कि मैं मतलब ये ऐसा ना लगे किसी को कि मैं कुछ प्रिविलेज्ड सिचुएशन में बैठ के मैं ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़ी तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। खास तौर पे एक्टर आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो बड़ी तकलीफ में है, और मतलब हम चाह कर भी मतलब उनको उस तरह से हम कोशिश करते हैं मनोबल बढ़ाने की। जैसे मैंने कई मित्रों को पीछे बोला कि भाई देखिए, अगर आपके पास सुविधा है वापस जाने की, अपने अपने शहरों में जाने की, तो उसमें क्योंकि नौजवान एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, या असिस्टेंट्स हैं, तो वो एक कहीं पे एक वो भी रहता है, अभिमान भी रहता है कि अब मम्मी डैडी को क्या बोलेंगे, या पिताजी है या माँ है या चाचा है या मामा है, वो ताने मारेंगे कि भाई क्या हुआ, तुम तो गए थे कुछ तीर मारने के लिए, ऐसे ही आ गए, क्या क्या हो? तो आदमी उसमें ज्यादा संकोच में आता है, तो उसको इस वक्त उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और अगर आपके पास सुविधा है माता पिता के पास जाके रहने की किसी भी शहर में, तो और आप अकेले रह रहे हैं अगर मुंबई में, तो आपको जरूर जाना चाहिए। और जब भी समस्या का थोड़ा सा निदान होता है, वायरस थोड़ा कम होता है, हो सकता है वो 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जब थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो, तब आप दोबारा आ जाइए, दोबारा से शुरुआत कीजिए, बनिस्बत कि आप अकेले क्योंकि उसमें अभी अभी मेरे मेरी मेरे फैमिली में एक हुआ, मेरी नीस हैं जो राजस्थान से यहाँ पे इंटर्न करने आई हुई हैं, एक अस्पताल है नानावती, और
उनको हमने तकरीबन 15 दिन पहले बोला कि भाई अब ये सिचुएशन खराब हो रही है, तो आप वापस चले जाइए, इंटर्न वापस कर लीजिएगा, बाद में आगे कर लीजिएगा, नहीं तो वहीं पे कर लीजिएगा राजस्थान में। तो जो एक आइडियलिज्म होता है एक, एक 20-22 साल में, तो उन्होंने बोला कि मेरी जो सीनियर हैं वो यहाँ पर हैं, मेरी कलीग्स यहाँ पर हैं, बड़ा कमजोर लगेगा, बड़ा कावर्ड वाला फील आएगा कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगी, और मैं बहुत प्रिकॉशन ले रही हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। और वो जहाँ पर पीजी थी वहाँ पे 6-7 और उनके साथ लड़कियां थी, वो धीरे धीरे करके वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में थी या नौकरी कर रही थी, वो धीरे धीरे चली गई और वो अकेली रह गई आखिर में। अभी 1 हफ्ते पहले उनको खांसी बुखार और वो सब हुआ, और फिर उसके बाद वो टेस्ट करवाया गया जिसमें वो पॉजिटिव हो गई। तो आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके माता पिता और हम सब तमाम लोगों के लिए इतने घबराहट वाले वो दिन थे, 2-3 दिन की भाई, क्योंकि अस्पताल में हमने अनुरोध किया तो वहां पे यही मालूम चला कि उन्होंने बोला हमारे यहाँ बिस्तर नहीं है, और वो जो हैं थोड़े बहुत रिजर्व में, वो सिर्फ जो बहुत इमरजेंसी केसेस हैं उनके लिए हम लोग रोक के रख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन संभल नहीं रही है। तो लकीली फिर बड़ी मुश्किल से जब वो दूसरा दिन शायद बीता, तो उसमें उनकी सांस पे असर पड़ रहा था और उनका नाक बंद हो गया, और बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो सोचिए कि हम लोग जा नहीं सकते हैं उनकी मदद के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में सारा लॉकडाउन है, बाहर से कोई आ नहीं सकता है। मेरी मदर इन लॉ हैं, वो उम्र में हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था एक, और वो रुक गया बीच में, तो वो उनके लिए ये हानिकारक होगा कोई और आए बाहर से। तो लकीली वहां पर कुछ एक बेड मिल गया और उनको भर्ती कर लिया गया, फिर वो अभी स्टेबल है, वहां पर है। तो लेकिन जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि इतना भय है लोगों में इसको लेकर, और जो पड़ोस में भी, और कहाँ से खाना आएगा, क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब रात में अगर ऐसा कुछ हो गया, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो उसके बाद मुझे बड़ा एक बेबस लगा, मुझे बहुत बेबस लगा कि मुंबई में 20 साल रहने के बाद भी मैं कोशिश करके चाह करके एम्बुलेंस नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे कलीग्स रहे हैं जो अकेले हैं इस शहर में, असिस्टेंट हैं, या तो हो सकता है उनको लगे कि मैं सनक गया हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि क्या मुझे गजराज सर फोन करके बोल देते हैं बीच में कि अच्छा तुम अकेली हो तो चली जाओ, तुम अकेले हो तो चले जाओ। लेकिन हो सकता है ना कि ऐसा भी, तो कि पागल, मैं तो यहाँ पे बड़े मजे से रह रही हूँ, यहाँ पे मेरा अपना नेटफ्लिक्स और वो सब चल रहा है, और उसके अंदर मैं खामखा में मम्मी तो वहां रोकेगी नेटफ्लिक्स देखने से। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मेरी सलाह मानी, और वो प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे जैसी सुविधा के अनुसार, बाय रोड या बाय बस या जैसे भी जा सकते हैं जा रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अकेले हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं, और आपके पास सुविधा है जाने की दूसरे शहर जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप बिना संकोच के चले जाइए, क्योंकि माँ आखिर माँ होती है, पिता आखिर पिता होते हैं, और वो आपकी जो केयर करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। ज्यादा ये लोगों का संकोच रहता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उसमें आप शहर जाइए, वहां पे 1 हफ्ते के लिए किसी गेस्ट हाउस में कहीं पे क्वारंटीन हो जाइए, और फिर उसके बाद, और मुंबई कहीं भागा तो जा नहीं रहा है, कि जब सुविधा हो, स्थितियां नॉर्मल हो, तो आप आ जाइए यहाँ पे। जी, दैट्स आई थिंक अ गुड सजेशन। खासतौर से बहुत से लोग सिंगल रह रहे हैं बॉम्बे में, और जो अभी और खासतौर पे संदीप जो अभी आए हैं पिछले 6-8 महीने में, 5 महीने में आए हैं, जो अभी शहर को समझे भी नहीं है, समझे नहीं। जैसे मेरी नीस है, अभी 4 महीने पहले आई है, 3 महीने पहले, तो उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है शहर के अंदर, क्या होने वाला है। तो अब हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था कि बेसिकली इसी बात से रिलेटेड एक बात थी कि अभी मैं जैसे बैचलर ही था और मैं भी बॉम्बे में रह रहा था, मैं थोड़े दिन पहले ही जयपुर वापस आया, मैं भी राजस्थान से ही हूँ। तो अच्छा, ओके। अब वापस मैं घर आ गया हूँ, लेकिन वहां पर भी दिक्कत हो रही थी। तो अभी हमारी जो पास वाली बिल्डिंग थी उसमें एक केस निकला था, तो उसमें वो बैचलर बंदे को ही एक कोरोना मिला। तो पता चला कि कैसे हुआ उसे कोरोना, तो पता चला कि खाना बाहर से मंगवाते हैं हम लोग, तो जो खाना
करने वाला बंदा आया था, उसके थ्रू हुआ। तो अब लेकिन ठीक है, उस टाइम तो बिल्डिंग क्वारंटीन कर दिया और बिल्डिंग को लॉक कर दिया और वो बंदे को मेडिकल दे दिया कुछ। एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के रही कि सारी सोसाइटी की जो मतलब मैरिड आंटीज हैं, उन्होंने ये किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया एक और बोला कि हम सारे बैचलर्स को खाना खिलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी जिससे बैचलर्स बाहर से खाना ना मंगाए और वो घर का ही खाना खाए। तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था और इतना इंटरेस्टिंग था कि रात को बोलती थी कि वो आप लिख दो कि आपको जो चाहिए, और फिर वो सुबह वो खाना मिल जाता था। तो वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि 100 रुपीज 120 रुपीज में पर मील वो मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जो रात में बोलेंगे वो सुबह बन जाएगा। बहुत बहुत गजब है ऐसा, क्योंकि अगेन जैसा बोला जा रहा है, अभी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये खाली बिल्डिंग में आने से या वैसे नहीं फैलता है। ये ड्रॉपलेट जो है, आप खांसते हैं या हाथ लगेगा, हाथ आपका नाक तक जाएगा, तो उस तरह से पहुंचता है। तो जिस तरह से लोग क्रूरता से पेश आ रहे हैं, खासतौर पे डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल स्टाफ के साथ, पुलिस विभाग के लोगों के साथ, वो बड़ा उसमें, और ये सब नॉर्मल लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, और वो कैसे कहें, वो विलेन लोग नहीं है, वो खलनायक नहीं है, लेकिन इतना भय अंदर पनप गया है कि वो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। लोग मतलब जो वीडियोस देखे कई हमने कि जहाँ पे मास्क पहनने और नहीं पहनने पे लेके जो लोग मॉल्स में या जो वेजिटेबल शॉप्स में जो किस तरह से भड़क रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। खुशकिस्मती से जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे लोग बड़े समझदार हैं और इस समस्या को डेथ वारंट की तरह नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत लकी मैं महसूस करता हूँ मैं अपने आप को। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया मैं यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स में 2 अलग अलग बिल्डिंग में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं लोग, लेकिन इतने इतने सहजता से लोगों ने लिया उस चीज को, और जो आपके जो कहीं पे कोई भी स्केयर नहीं, डर नहीं, वो वैसा होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे बड़ा लोग एकदम खिलाड़ी हो गए हैं पूरे के पूरे। जो हाउसिंग सोसाइटी में जो कमिटीज हैं, खासतौर पे मुंबई में, वो बड़े अजीबो गरीब से उसमें रूल्स बना दिए गए कि 10 बजे आप निकलेंगे ही नहीं, आपको आने ही नहीं दिया जाएगा। तो वो हाँ, बहुत ज्यादा। कमल, आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस पूछ लो, नहीं तो बाद में तुमको बहुत गाली पड़ेगी। जी जी जी। तो एक क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन एक्टर्स जो स्पेशल ये था कि हाउ टू लुक मोर नेचुरल व्हाइल परफॉर्मिंग, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस में जनरली वो दिखता है कि कुछ भी एडेड एफर्ट नहीं दिखता है अलग से, मतलब इट लुक्स लाइक दैट यू आर दैट कैरेक्टर एंड इट कम्स आउट नेचुरली फ्रॉम यू। कह सकते हैं कि मैं रोल इस तरह के चुन पाता हूँ कि जो मुझे लगता है कि मैं उसमें इजाफा करूंगा या उसको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दूसरी चीज है कि जो लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट है, उसको गीता समझना, उसको समझना कि हाँ ये अगर मतलब एक बार आप कन्विंस हो जाएं, उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। जो आप सेट पे हैं तो उसको बाइबल की तरह आप ट्रीट कीजिए और उसको पढ़िए। उसमें आप जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया निकलता है, बहुत कुछ नया निकलता है। और अगेन, अगर आपको डायरेक्टर के साथ कई बार होता है कि आपकी जुगलबंदी ठीक नहीं होती है, आपको लगता है कि वो बेवकूफ है या वो उसको समझ ही नहीं है, उसको तो ये सीन ऐसे करना चाहिए था, तो वो आपका एरिया नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए। आप आपको या तो उस प्रोजेक्ट में होना ही नहीं चाहिए था, आप थोड़ी बहुत डिबेट कीजिए, लेकिन फिर ये डायरेक्टर का मीडियम है एक तरह से और उसकी जिम्मेदारी है, तो आप उसको पूरी छूट दीजिए, बोलिए कि आप बताइए सर, सरेंडर कर दीजिए, उसमें जिंदगी आसान रहती है, मुझे ऐसा लगता है। डिबेट कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही नालायक हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, फिर बोलिए कि मैं इसमें सरेंडर कर रहा हूँ, मैं उस तरह सरेंडर कर रहा हूँ कि मैं नहीं आऊंगा इसमें। बट वो फोर्स कभी लगना नहीं चाहिए, आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप फोर्स करो, अगर आपको लग रहा है तो। हाँ, क्योंकि आप ये सारी जो चीजें हैं वो शूटिंग शुरू होने से पहले होनी चाहिए। वो अगर उसमें आप होमवर्क, क्योंकि आमतौर पर प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपने होमवर्क नहीं किया होता। होमवर्क कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें क्या है कि आपके सारे जो प्रश्न है उसका सोल्यूशन निकल आता है और डायरेक्टर भी या राइटर भी रेडी रहते हैं आपको अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन अब सेट पे जाके बोलेंगे नहीं आपने ऐसा बोला था
लेकिन मैं यहाँ पे ये पहनूंगा या मुझे ऐसा होना चाहिए या ये मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा, ये मेरे कैरेक्टर के अगेंस्ट जाता है, तो वो नाजायज है। जी, जी। एक दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ डू वी डू डिफरेंट कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम? Is it possible to take up two films with different characters at same time, and how do we do that? Does switch on and switch off acting helps? बिल्कुल एक्टर हैं आप। एक जमाने में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ये लोग 3-3 4-4 शिफ्टों में काम करते थे, और आप देख सकते हैं वो सारी फिल्में, एक तरफ अभिमान थी और एक तरफ जंजीर थी और एक तरफ शोले की शूटिंग हो रही थी। सुना है कि बच्चन साहब सुबह की फ्लाइट लेके जाते थे, रामगढ़ में शूटिंग करते थे बेंगलोर में, और रात की फ्लाइट से यहाँ पर आते थे और यहाँ पे 6-7 घंटे जंजीर की या बाकी तमाम शूटिंग होती थी। तो वो अब अगेन, अब खैर ऐसा अब तो नहीं होता है फॉर्चुनेटली, लेकिन अगर ओवरलैप हो भी रहा है तो वो तो एक्टर है, तो आपकी एक्टिंग, अब कलाकार हैं तो उसके अंदर तो आपको ये तो आपको बिलीवेबल बनाना ही पड़ेगा। जी, जी। एक एक क्वेश्चन है कि जो कि इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी, कि हाउ टू प्ले अ कैरेक्टर व्हिच यू हैव नेवर सीन बिफोर और रेड अबाउट बिफोर? ऐसा कहीं हो नहीं सकता। अच्छा, ओके, मतलब अपन पढ़ा होगा, देखा होगा, ऐसा ऐसा निराला, मतलब अनलेस कोई एलियन का कैरेक्टर हो, कोई मार्स से कोई कैरेक्टर आया जो आपने नहीं देखा है तो वो अलग बात है, लेकिन आपने देखा ही होगा। और अगेन फिर से कि एक्टर को पढ़ना चाहिए, चाहे वो बायोग्राफीज पढ़े, हिस्ट्री की किताबें पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, पढ़े जरूर। पढ़ाई जो है बहुत जरूरी है, वो आपको आपकी इमेजिनेशन को फ्लाइट देती है, और वो आपको आपने जो कैरेक्टर, जैसे मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स जब मैं रेफरेंस ढूंढता हूँ अपने दिमाग में, तो मैंने पढ़े होते वहां मिलते हैं। मुझे मंटो की कहानी का कोई कैरेक्टर अच्छा लग जाता है, मुझे परसाई जी की किसी लिखी हुई बात का कुछ अच्छा लगा, राग दरबारी का कोई एक पात्र मुझे बताता है कि हाँ ऐसे कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। राइट। आई काफी थिंक कुछ पढ़ना और देखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए। जी तो आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है उसके बियॉन्ड आप जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं 500 जिंदगियां नहीं जी सकता हूँ, लेकिन दोस्तोयेव्स्की मेरे बिहाफ पर 50 जिंदगियां जी चुके हैं, गोरकी मेरे बिहाफ पर 50 जिंदगियां जी चुके हैं, प्रेमचंद मेरे बिहाफ पर 100 जिंदगियां जी चुके हैं। राइट। मैं जैसे अभी मैं पीछे बहुत बचपन में पढ़ी थी, और मैंने दोबारा से नमक का दारोगा, वो मैंने एक ऐप है, ऑडियो ऐप, उस पर सुनी दोबारा से, बड़ा मन खुश हो गया कि देखो ये 1930s में कभी लिखी गई होगी कहानी, और उस जमाने की, और आज भी कितनी रेलेवेंट है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और अब वो जो उस तरह का कैरेक्टर, या जो उसके अंदर मुंशी जी हैं, या जो जिनका जो बिजनेसमैन है, जो जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक बंशीधर जी। मैं सोच रहा हूँ सर, एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आई थिंक हम लोग ओवर टाइम भी हो गए हैं। तो एक आखिरी सवाल ये था कि इज इट पॉसिबल टू एक्ट विदाउट जॉइनिंग एनी एक्टिंग स्कूल? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने एक्टिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया, मैंने एमएससी में ट्राई किया था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मैं रिटर्न में पास हो गया था, मेरा जो इंटरव्यू है उस वक्त वो कुछ वजह से मैं ठीक से नहीं दे पाया, तो मुझे उसका अफसोस हमेशा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें और कुछ नहीं होता, आप एक स्ट्रीमलाइन होते हैं, आपको चीजें साल भर या 2 साल के लिए आप सिर्फ वही कर रहे होते हैं, तो वो अच्छी चीज है, मुझे ऐसा लगता है, जो अगर आपके पास सुविधा है तो आपको जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा बच्चन साहब ने कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से नहीं किया, और धर्म जी ने नहीं किया है। जी, जी, ठीक है। थैंक यू सर, आई मीन दैट वाज रियली इंसाइटफुल। सर आपका, संदीप सर आपका माइक। अब वाइंड अप कर लो, 7:30 बज गए, आधा घंटा ओवर टाइम। वो सर, हाँ, वैसे हमारे जितने भी अभी तक सेशंस हुए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा टाइम पर खत्म कर देते थे, पर ये सेशन है कि हमें आधा घंटा ऊपर चला गया, पर हमारे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी वहीं के वहीं है, कोई हिला नहीं है वहां से। लगे पड़े। नहीं, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया कि आपने उसको इतने प्रोफेशनली किया। आपने मुझे जो उसका जो फ्लो किस तरह होने वाला है, या आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं पूरी चीज, और टेक्निकल रिहर्सल आपने की, और उसके अंदर ये दिखता है कि आप कितना अपने प्रोफेशन, अपने काम को लेके, आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, उसको लेकर कितने संजीदा हैं।
कितने ईमानदार हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप संजीदा हैं तो उसके अंदर मुझे भी सोचने के लिए मैं भी अपने को खाली रखता हूँ कि हाँ ये 5:30 बजे हमें एक बार टेक्निकल रिहर्सल करनी है, तो 4 बजे ऑनवर्ड मैं कुछ और नहीं करूंगा, मैं इसी जोन में रहूंगा कि क्या होने वाला है, क्या क्या थोड़ा सा अपने आप को डिसएंगेज करूंगा अलग अलग चीजें। वो आपकी वजह से हो पाया कि आपने मुझे उसके लिए मोटिवेट किया कि जब मुझे लगा कि अरे यार ये लोग इतना इसको सिंसियरली इस चीज को ले रहे हैं, क्योंकि इसको बड़ा लाइटली भी लिया जा सकता है ना कि करना क्या है यार, लाइव है, कुछ सभी लोग तो कर रहे हैं, मतलब एक कंकड़ मारो तो 15 इंस्टा लाइव और फेसबुक लाइव नजर आ जाते हैं। तो उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और अगेन मैं जब ये करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ अपने जो थॉट्स निकाल के ला रहा हूँ उसको मंथन करके, तो वो मुझे भी हेल्प करते हैं, कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे लीड करूं इन दिनों। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कॉन्वर्सेशन से बहुत अच्छी चीजें निकल कर आती हैं, ये बात तो बिल्कुल जरूर सर। जरूर। तो वही है कि सब लोग जो हैं अकेले रह रहे हैं, भले ही अपने शहर जाएं ना जाएं, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने कुछ अपना क्या बोलते हैं फोरम्स ज्वाइन कीजिए, अकेले मत रहिए। अकेले रह के खाली हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Z5 ये खाली उनकी दुनिया में मत रहिए, क्योंकि आपके दिमाग को आपको लोगों की बातें सुननी है। फोरम्स जरूर ज्वाइन कीजिए। युवा एक फोरम है, फेसबुक पे है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है कि उनके अलग अलग वेबिनार्स हो रहे हैं, तो वो या कहीं पे भी आप लोगों से इंटरेक्ट जरूर करते रहिए, बहुत जरूरी है सबके लिए, हम सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर संदीप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो जो मंशा थी बहुत सालों से वो मेरी पूरी हो गई। गुजरात से इतना डिटेल में मैं पकड़ पाया उनको और बात कर पाया। आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस। बाकी तो मेरे और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं पूछता रहूंगा उनसे।